Good evening, everybody, and welcome back to Devdeep classes. Thank you all for showing support of my channel, and I pledge to come up with more interesting videos and content for your enlightenment. For those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science, but I do teach other subjects that are mentioned below. If the interested student, those who want to reach out to me through social media, you can reach out to me over Facebook at my account Devdeep Bose or at the aforesaid contact that is encircled for you. For those of you who are liking my videos, don't forget to hit the bell icon and do not miss any video from Devdeep classes. So hit the bell icon. So today I'll be, for the first time with the request of my students, I'm uploading a video on mathematics for standard 10. Okay. So the chapter that I'll be dealing with is linear equation in two variables, which is third chapter of the mathematics syllabus. Okay. Now the expected marks from this chapter is 7 to 10 marks. So a very vital chapter on your hands. Now we start with the general topics of this chapter. Okay. Now we first see what are the topics that we are going to discuss today. The first topic that we have in algebraic equation. Okay. So what is algebraic equation? Algebraic equation is a combination of constant. It is a combination of variables. So what is algebraic expression then? It is a combination of constants and variables. What are they connected with? They are connected with fundamental operators. So they are connected with fundamental operator. As per the mathematics, we all know what are the fundamental operators. They are plus, minus, into and division. So they are the fundamental. So what is algebraic expression? It is a combination of constants. What are constants whose value is always fixed? Variables are basically A, B, C, whatever the lexical variables we use in algebra. They will be connected by the fundamental arithmetical operators, that is ranging from plus or addition, minus or subtraction, into or multiplication, and divide or division. Okay, one of the examples I have already propounded, like ax square plus b by c. So this is an example of an algebraic expression. Now moving on, what is an algebraic equation? An algebraic expression with the equal sign is called algebraic equation. So algebraic expression के साथ अगर हम इक्वल टू साइन जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है algebraic equation. जैसे कि आप देख सकते हैं y equals to bx plus c, ये आपका algebraic equation हो गया. Alright, understood? Now what is linear equation? The greatest power of an equation. मान लीजिए कि कोई भी ग्रेटेस्ट पावर मतलब क्या है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं. सो व्हाट इज अ एग्जांपल ऑफ अ डिग्री? यू कैन सी हियर आई एम गिविंग एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब प्लस डी. तो यहां पर हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया? 3. तो ये आपका है द ग्रेटेस्ट पावर या फिर डिग्री. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इट इज. ओके, So greatest power in an equation, if that greatest power is 1, यानी कि greatest power एक equation का 1 हो गया तो उसे हम बोलते हैं linear equation. जी यहाँ पे आपके लिए example दिया गया है which is m equals to ax plus bx. ठीक है, आप और एक example ले सकते हैं y equals to mx plus c. तो these all are examples of linear equation where you can see that the degree is 1. Now, how we can solve the graphical methods of the equation? A graphical method of equation can be solved by basically पहले आपको दो equation side by side लिखना है. ठीक है, after writing the equation you have to segregate the variables, that is a1 a2 b1 b2. आपको पहले a1 a2 निकालना होगा, b1 b2 पहले निकालना होगा, c1 c2 निकालना होगा. ओके, because they are all variables and real numbers. Then you have to check that the square of the first term of the linear equation and the second term of equation should not be equal to 0. उसके बाद हमें कुछ conditions यहाँ पे follow करना होगा. तो क्या करना है, पहले दो equations को लिखिए, उसके बाद उनमें से variables को निकालिए.
निकालने के बाद आपको चेक करना होगा कि वो रियल नंबर्स है कि नहीं है। उसके बाद उनका समेशन का जो स्क्वायर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। मूविंग ऑन, तो अभी हम लीनियर इक्वेशन को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चे? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ग्राफिकली आप ये कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल्स टू ax प्लस b है, उनमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम उसे लाइन ग्राफ के तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है y इक्वल्स टू 6x प्लस वाई, तो इनमें से कहीं भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद सॉल्व करके दो कोऑर्डिनेट निकालो और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो। ऐसे ही आप ग्राफ को बना सकते हैं। तो अब मुझे लगता है इसमें कोई आपका डाउट नहीं है। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को निकालने के लिए पहले आपको याद रखना है, एक कॉमन पॉइंट पे अगर दो लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और या भी कोई भी तरीके का नेचर शो करता है, तभी हम वो सॉल्यूशन को एन्यूमरेट कर सकते हैं। सो द पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और आइदर बीइंग पैरेलल और कोइंसाइडिंग, उसके तरह हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। और उसके नेचर के हिसाब से, जैसे कि इंटरसेक्ट होना, पैरेलल होना, कोइंसाइड करना, उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन भी डिफर करेगा। तो आइए चल के देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे डिफर होगा। तो पहला जो कंडीशन यहां पर हम देखेंगे, इफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विल शो इंटरसेक्शन, तो यहां पे क्या होना है, a1 by a2 इनका जो फैक्टर फॉर्म है दैट विल बी नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, तब सॉल्यूशन का नेचर बन जाएगा आपका यूनिक। तो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है और a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ रहा है, तभी वो इंटरसेक्शन होगा, रादर तब उसका नेचर क्या आ गया, यूनिक। बच्चा आपको ये सब नेचर याद रखना होगा, क्योंकि आपको एक तरीके का आपको पहले दे सकता है कि ग्राफ दे दिया, आपको नेचर निकालना है, तो ग्राफ के अनुसार आपको पहले नेचर आपको निकालना दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। या फिर आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, आपको वहां पे वेरिएबल्स को अलग करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों अनइक्वल है। अगर अनइक्वल हो गया a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आपका ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो आपको बनाना है और उसके बाद नेचर में भी आपको बोलना है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कोइंसिडेंट लाइन तब आएगा जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, यानी कि सब वेरिएबल्स इक्वल हो जाएगा एक दूसरे से, तो तब आ जाएगा आपका नेचर क्या आ जाएगा बच्चा, नेचर आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन विल बी द नेचर। एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, इट विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, जैसे कि ये देखो पॉइंट पे आके मीट कर लिया। नाउ आज के लिए फाइनल टॉपिक जो है दैट इज कंडीशन 3, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल हो जाएगा जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 होगा, ठीक है, बट ये पार्ट इक्वल तो हो रहा है, ठीक है, बट ये नहीं इक्वल होगा, ठीक है, तो तब सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है, तब नेचर होगा पैरेलल। तो आपको इधर क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि ग्राफ का नेचर क्या आ रहा है, उसके साथ आपको याद रखना होगा कि क्या वेरिएबल के साथ या फिर एक्सप्रेशन में वेरिएबल का क्या रिलेशन हो रहा है फॉर द सब्सिक्वेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं। दोज हु आर अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज देवदीप क्लासेस ऑनलाइन, you could reach out to me by taking screenshot of any part and asking the question directly, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या डाउट है आप पोस्ट कीजिए। सो फॉर एनी डाउट्स, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आइदर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए विद स्क्रीनशॉट या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन टुडेज for today's content that is related to mathematics, which was requested by some of my students कि आप मैथमेटिक्स का भी एक वीडियो दे दीजिए।
तो ये लो बच्चे दे दिए, ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक ऑन टू द वीडियो एंड प्लीज एट द एंड ऑफ की फॉर्मेलिटी होता है, बोलना पड़ता है बच्चे कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज फ्रॉम देवदीप क्लासेस. Please do tune in, or tomorrow we'll come up with some more interesting videos of different classes and of a different subject. So thank you all for tuning in today.